بہت سمے پہلے کی بات ہے جب ایک لڑکی تھی جو بدکاری میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا کہ تو اپنے آپ کو فقط برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بارش ہو رہی تھی، موسم سہانا تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور حلوائی کے پاس جا کر حلوہ کھاتے ہیں۔ وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں کا دودھ بہت لذیذ تھا۔ اس طوائف نے نخرے دکھاتے ہوئے حلوے والے سے کہا کہ ہمیں گرما گرم حلوہ اور دودھ کا پیالہ چاہیے۔ وہ حلوائی نے کہا کہ ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اور حلوہ بن رہا ہے، تم لوگ انتظار کرو، سب کی باری آئے گی۔ اب بارش تو تھم چکی تھی پر موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ قریبی مکان کے دروازے پر جا بیٹھی۔ باتوں باتوں میں اس کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک فقیر پر پڑی جو ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ ایک اللہ والے تھے جو بہت ہی قابل اور عامل تھے۔ وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ کے لیے یوں ہی محلے میں نکلا کرتے تھے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان دین سے دور ہے تو اس کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کبھی اپنے منہ سے کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ تو اب آپ اسی حلوائی کی دکان سے گزرے، مکان وہیں سامنے تھا جہاں پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی فقیروں کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن جب وہ درویش اللہ والے حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے تو بھیڑ ہونے کے باوجود بھی اس حلوائی نے کہا کہ بابا رک جائیے، میں نے آپ کے لیے دودھ کا گرما گرم پیالہ رکھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے آپ ضرور گزریں گے، اسی لیے حلوہ اور پیالہ آپ کے لیے تیار ہے۔ اس نے بڑے عقیدت اور محبت سے دودھ کا ایک گرما گرم پیالہ اور میٹھا حلوہ خدمت میں پیش کیا۔ اس پر اس طوائف کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ اس اللہ والے کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، گرما گرم دودھ کا پیالہ دے دیا، اور ہم لوگ یہاں پر کب سے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے عاشق سے کہنے لگی کہ دیکھو اتنی بھیڑ میں بھی اس نے ہم سے کہا کہ انتظار کرو اور اس فقیر کو دیکھ کر فوراً پیالہ دے دیا۔ یہ حلوائی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ والے نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے دودھ پی لیا اور الحمدللہ کہتے ہوئے آگے چل پڑے۔ وہ طوائف اپنے یار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ جب اللہ والے اس مکان کے سامنے سے گزرے تو بے خیالی میں ان اللہ والے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا اور جس سے کہ کیچڑ اڑ کر طوائف کے کپڑوں پر چلا گیا۔ اس بات پر طوائف کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر کہا میرے اتنی قیمتی لباس پر اس نے کیچڑ اچھال دیا، اور اس کے چیخنے اور چلانے پر وہاں بھیڑ جمع ہو گئی۔ لیکن اس وقت اس کا وہ عاشق اٹھا اور اس گستاخ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، اور اگر فقیر کے لباس میں ہے تو کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اپنی معشوقہ کے لباس پر کیچڑ کے داغ دیکھ کر اس نے اللہ والے کو وہیں پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ آدمی اتنی سخت گھٹیا حرکت کرے گا۔ حلوائی جو ان اللہ والے کا دامن تھا وہ زور سے بولنے لگا تم پاگل ہو گئے ہو، نہیں جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی، اس نے جو کیا ہے اس عورت کی محبت میں کیا ہے۔ اب مار کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگے یا اللہ تو بڑا بے نواز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے عاشق ہیں، بس تو اپنی سچی راہ پر چلانا، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ والے آگے چل دیے۔ آپ کی شان میں وہ عورت گستاخی کر رہی تھی، اس کا وہ یار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ چلو گھر کے اندر چلتے ہیں۔ طوائف کا وہ یار مکان کے اندر جانے ہی لگا کہ اچانک سیڑھی پر اس کا قدم پڑا اور اس کا پاؤں پھسلا اور سر کے بل وہ زور سے زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ طوائف جو تھی وہ ہائے ہائے کرنے لگی، یہ دیکھو اس بوڑھے آدمی نے میرے عاشق کو بددعا دی، وہ جادوگر ہے، اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا، اسی لیے یہ مر گیا۔ اس نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اس نے شروع کر دیا، اور جو لوگ بد عقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ اس کی ایک ادا پر وہ مرتے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے۔
मंत्र पढ़ता है, जादू टोना कर रहा है ताकि लोग मर जाएं, और ये तो हमें भी मार डालेगा। इसको तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगे और वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना की, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, कुछ पढ़कर फूंका और जिससे वो मरकर गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। उस शख्स ने कहा, फिर वो गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने उन लोगों को बता दिया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवाइफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवाइफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वो कैसे मरा। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वो मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, ये मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूँ, अभी वक्त है, तौबा कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। उस तवाइफ को और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफ़ी मांगूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ ये किया है, मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूँगी। उसके बाद उसने अपने आशिक में से एक आशिक से पूछा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है? तो उसका एक आशिक कहने लगा, हाँ, फला जगह पर एक जादूगर बैठता तो है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की काट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वो अपने अमल से किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं वही जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वो बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फ़कीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वो जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वो दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वो कहने लगी, हाँ, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बात का कोई तोड़ हो, तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वो उसको बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ यहाँ पर, तुम्हें मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करूँगा, मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वो ये अमल करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे लग रहा था कि कहीं ये अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फ़िक्र हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाज़ारो हुस्न की तवाइफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं, उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जान के ही लाले पड़ जाए, और जहाँ मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊँ। तो उस तवाइफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वो अमल करूँगी, तुम तो बहुत बुज़दिल हो, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फ़कीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वो अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वो अमल किया और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वो फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई और वो जो इरादा करके बैठी थी वो खुद ही एक कुतिया बन गई। और दोस्तों, अब वो अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के ज़रिए खबर मिल गई थी कि वो तवाइफ अब एक कुतिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अब वो तवाइफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, तो अब वो खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते बल्कि उसके हक़ में दुआ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ एक छोटा सा अन्य और वाक़या है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये भी वाक़या इस्लामिक
वाक़या ही है। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र ये है कि अपनी कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम ना हिम्मत खो बैठें और ना रोए धोएं। अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल और हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वो हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। अल्लाह ने अपने पैगंबर अयूब की परीक्षा ली। पहले उन्हें खूबसूरती के साथ बेहिसाब धन संपत्ति दी, कई संतान दिए, लेकिन परीक्षा के क्रम में उनके सभी संतानों की मौत हो जाती है। वे खुद गंभीर रूप से बीमार होकर 7 वर्ष तक बिस्तर में रहे। सारी दौलत खत्म हो जाती है। उनके सभी बकरियां समुद्री तूफान में बह जाती हैं। खराब मौसम के कारण सभी ऊँटों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह से शिकायत नहीं की। अल्लाह ने कुरान में प्रशंसा करते हुए फरमाया, अयूब क्या ही बेहतरीन सब्र करने वाला है। अल्लाह ने सब्र की वजह से फिर से धन दौलत, संतान, जानवर सहित सभी चीज़ें पहले से ज़्यादा उन्हें अता कर दी है। कुरान में है कि सब्र से दुनिया में अल्लाह की मदद और आखिरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमीन का मामला बड़ा अजीब है। उसके सारे मामले उसके लिए भलाई के ही होते हैं। उसकी कोई भली बात पेश आती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसमें उसके लिए भलाई ही होती है, और जब उसे कोई तकलीफ़ की बात पेश आती है तो सब्र से काम लेता है और उसमें भी उसके लिए भलाई ही होती है। एक अन्य हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमीन मर्दों और औरतों पर कभी कभी आजमाइशें आती रहती हैं। माह रमज़ान में भी सब्र का इम्तिहान अल्लाह लेते हैं। इसके बदले में हम नेक इंसान बन जाते हैं जो इंसानियत को बर्बाद होते कभी भी नहीं देख सकते। इस इंसानियत की हिफाजत की वजह से अल्लाह इसका बदला उनके आल तक देते नज़र आते हैं। अल्लाह हम सबको सब्र करने की ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इस्लामिक वाक़या बेहद अच्छा लगा और आप इसी तरह के इस्लामिक वाक़ये की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।